Okay, so for today's session is going to be about linear graphs. Although we've done the basic of linear graphs already, like we know what is the graph of x plus 5, right? We know what is the graph of 2x plus 3, right? We already know about these. कि कैसे plot करते हैं. We just start taking the values of x and y. x की कोई वैल्यू डालेंगे, y की आ जाएगी, उसको लाइन प्लॉट कर देंगे, we get a line, right? हमने ये x plus y is equal to 5 ऑलरेडी एक किया हुआ है. x plus y is equal to 5 is nothing but y is equal to minus x plus 5. तो ये ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ ये ग्राफ तुमने देखा है लीनियर के सेक्शन में. But I'm going to repeat all of this because I have to discuss the transformations and movements of linear graphs. Okay. So अभी तक हमने linear को इसी फॉर्म में देखा है generally ax plus by is equal to c. If you remember when we did the first class I told you about the linear equations this way कि इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं. क्या चीजें होती हैं? We have a slope which is represented by, कैसे represent करते हैं slope? No, Bhanupriya, in terms of a and b and c, slope कैसे लिखते हैं? अगर तुम लोगों को याद है तो कोई आंसर नहीं है. क्या आंसर था? m नहीं है. m तो है लेकिन m किसके बराबर था? What was m actually? नहीं, जब ax plus by is equal to c है तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं आशिमा, गलत बता रहे हो. राहत ये ठीक है, y2 minus y1 x2 minus x1 सब ये बोल रहे हैं, बट वो तो चलो स्लोप की डेफिनेशन बता रहे हो तुम. यस सान्या इज करेक्ट. It was minus a by b. Don't you remember that? I told you in the last class. Remember this? भूल गए? Who remembers this? Slope I told you is written in the form of minus a by b. Do you guys remember this? हाँ, उल्टे से सारी प्रॉब्लम आ जाएगी. आशिमा उल्टे से ये प्रॉब्लम आ जाएगी. Okay. Do you remember x intercept? x intercept कैसे किया था? याद है कि नहीं? Anurag, if you get any problem, you can ask me. Let me just give you the permission to unmute yourselves. So if you guys want to unmute yourselves at any point of time, you can, and then you can ask. We are less number of people, we can do this. We can afford to do this. Okay, x intercept. What is x intercept? Yes. C by a, correct. हाँ, roots, correct. Roots होता है, बिल्कुल राहत. लेकिन roots हम quadratic के terms में बोलते हैं. इसके terms में roots नहीं होते. We call it a solution, okay? Is my voice cracking for everyone? Namya, if you've done parajumbles earlier 2 classes, then you should complete that one, okay? तो 3 पूरी हो जाएंगी at least, क्योंकि मेरी तुमने वैसे भी मिस करी हुई है, right? तो तीसरी पूरी कर लो. मतलब it's completely your choice, whatever you want to attend. और एक रिकॉर्डिंग देखना फिर. If you want to watch that recording, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे. However you are comfortable, okay? Right. X intercept क्या होता है? राहत, रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक में. अब इतनी देर से क्वाड्रेटिक करते आ रहे हो इसलिए शायद तुम्हें रूट्स दिमाग में रह गया. लीनियर में तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं हम. एक्स इंटरसेप्ट एक ही बार कट होएगा एक्स ग्राफ. अनुराग, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इंटरसेप्ट मींस. इंटरसेप्ट पता है ना अनुराग क्या होता है? खुशी, you joined in after quite some time. If you find something alien kind of things, because you were not present in the last 2 classes for linear equations because of your health. So yeah, I know. So I'm just saying that
आई होप यू आर नॉट फीलिंग एलिनेटेड राइट नाउ. कुछ अगर नया लग रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो कीप आस्किंग मी, ओके? नहीं तो ये लेक्चर समझ नहीं आएगा पूरा. You need to tell me side by side if you're not understanding anything. Okay, right. So x intercept is c by a. What is y intercept? Can somebody tell me what is y intercept? x intercept मैंने बताया था, x intercept बताया था जब when y is 0 तो x intercept आता है, तो वो y 0 डाल के you can check ax is equal to c, so x will be c by a. We get the value. Y intercept c by b, correct. It's c by b. Y intercept कब आएगा? जब x 0 होगा. When you put x to be 0, तो by is equal to c, y is equal to c by b. Okay, I hope all of you understand this. ये याद होगा तुम्हें, सबको ये याद है? ठीक है, यहीं से तो ग्राफ की शुरुआत होती है. We'll talk about it now. Y is equal to x. Can somebody tell me the graph? Graph एक काम कर सकते हो. You can make it on your copy. You can make it on your notebook and show it to me on the camera. Okay. Y is equal to x. You can make it. बिल्कुल ठीक प्रांजल. You can make it and show it to me. हाँ ठीक है राहत, बिल्कुल ठीक है. So I hope everyone has seen that graph. It's a straight line. You get this value. X को 0 डालोगे तो y 0 आएगा. X को 1 डालोगे तो y 1 आएगा. You get this point. X 2 डालोगे तो y 2 आएगा. You get this point and so on. So this is like your graph. Okay, it's a straight line. इसमें देखो x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है. ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है? 1. स्लोप 1 का मतलब the degree of change in value of y as compared to degree of change in value of x is same. ठीक है ना, y2 minus y1 by x2 minus x1 is 1. It is same. Do you all understand this? ये 1 स्लोप है. 1 स्लोप एग्जैक्टली सेंटर में होती है, इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अब y2 minus y1 x2 minus x1 की बात करें. लेट्स से दिस पॉइंट इज y2. लेट मी जस्ट मार्क इट विद अनदर पेन. लेट्स से दिस पॉइंट इज y2, दिस पॉइंट इज y1, and here this point would be x1, here this point would be x2. ये x और y इसके कोऑर्डिनेट हैं. I am trying to find out y2 minus y1 by x2 minus x1, right? आइडली मैं क्या कर रहा हूं, y2 यहां तक है, y2 यहां तक है और y1 यहां है, तो ये सारा जो है ये y2 minus y1 हो गया. समझ रहे हो? दिस ब्लैक लाइन इज y2 minus y1. Do you understand? And when I say x2 minus x1, मतलब ये x2 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे है, तो x2 पूरा और x1 ये पूरी लाइन होगी x2 minus x1. ठीक है, x2 minus x1, y2 minus y1, x2 minus x1. तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया. एज पर ट्रिग्नोमेट्री या ट्री रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू, yes, tan theta. Not sin आशिमा, tan. वो भूल गए तुम, वो स्कूल में किया होगा तुमने, ये पंडित बद्री प्रसाद वाला, है ना? For your international exams, they don't know Pandit Badri Prasad. They use the term SOHCAHTOA. SOHCAHTOA मतलब क्या है? साइन होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट साइड कौन सी? ये एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. cos is adjacent by hypotenuse. एडजेसेंट एंगल की एडजेसेंट साइड ये वाली होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? एंड tan इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस, p by b.
ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर दिस। अगर कभी तुम किसी बुक में सोकाटोआ पढ़ो तो ये मतलब है उसका, ठीक है ना। तुम्हारे स्कूल्स में पंडित बद्री प्रसाद पढ़ाते हैं, यूएस के स्कूल में वो सोकाटोआ पढ़ाते हैं, राइट। एनी हाउ you should remember these t ratios. So this is tan theta, right? So अगर तुम्हें पता हो tan 45 कितना होता है, it is 1, right? तो obviously ये स्लोप तुम्हें 1 दिख ही रहा है, तुम्हें बता ही रहा था मैं, स्लोप 1 है इसका, ठीक है। Do you guys understand this? What if I have the graph y is equal to x plus 1? तो क्या होगा इस ग्राफ का? What will change in this graph? What will change in this graph if you try plotting it? तो ऑब्वियसली y x को 0 डालते हो तो y 1 आएगा, मतलब x 0 है तो y 1 है, ठीक है। x को 1 डालोगे तो y 2 आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट। x 2 डालोगे तो y 3 आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट। यू कैन जॉइन ऑल दीज एंड इफ यू नोटिस दिस ग्राफ हैज शिफ्टेड 1 प्लेस अपवर्ड, एग्जैक्टली 1 पॉइंट अपवर्ड चला गया ये, ठीक है, 1 पॉइंट अपवर्ड चला गया। समझ रहे हो ये बात? इज इट क्लियर? खुशी, you should watch Mondays, Wednesdays, Fridays lectures. मैं तुम्हें लीनियर, इंस्टेड ऑफ डेज जस्ट गो बाय लीनियर, linear 1, linear 2, just watch linear 1 and 2 and then watch quadratic 1 and 2. Okay, you'll understand it better then, and let me know if you would want to repeat it. We can repeat it. Okay, Khushi, so you can go have rest and watch those lectures. Okay, right. Has everyone else understood this? That graph has shifted 1 place upwards. Now let me explain the role of slope here. देखो, यहां से यहां वैल्यू x की -1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब मेरा ग्राफ यहाँ पे था, जब ये मेरा ग्राफ यहाँ पे था, ठीक है, -1 0, ये यहाँ पे दिस इज 0,1, ठीक है ना। तो -1 को तुम एक पॉइंट इधर लेके जाते हो, मतलब 0 पे ले जाते हो, ठीक है, तो तुम्हारा y भी नीचे आ जाता है, साथ के साथ y तुम्हारा यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। 0 एक का ही शिफ्ट आ रहा है, x y को 1 से चेंज करते हो, x में भी 1 का ही चेंज आता है, x में 1 का चेंज करते हो, सॉरी y में भी 1 का ही चेंज आता है, राइट। दैट्स व्हाट स्लोप एक्चुअली मींस। स्लोप 1 का मतलब है कि अगर y को 1 से चेंज करोगे x भी 1 से ही चेंज होगा, राइट। Yes, definitely, Kushi. No problem. You can go ahead. Is it clear to everyone? कि y में 1 का चेंज, x में 1 का चेंज, that's what slope means. Okay, right. So अगर x -1 होगा तो ग्राफ क्या होगा? What will happen to the graph? What will happen to the graph? Yes, 1 point downward shift हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. This is how the graph is going to be. ठीक है, देखो यहाँ देख के तुम्हें पता भी चल रहा है कि दिस y इंटरसेप्ट इज -1, ये -1 पे कट हो रहा है y एक्सिस, ठीक है ना। और अगर y को 0 ले लोगे तो x इंटरसेप्ट 1 आ जाएगा, देखो 1 पे कट हो रहा है। यू नो दैट इंटरसेप्ट्स आर आल्सो क्लियर, ठीक है, 1 प्लेस डाउनवर्ड्स आ गया ग्राफ। सबको ये मूवमेंट समझ आ रही है ना? बिल्कुल ठीक, अनुराग, प्रांजल, आशिमा, सान्या, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। राहत क्लियर है ये 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। परियत, इज इट क्लियर? वसुधा, आशिमा, भानुप्रिया, राइट। सो मूवमेंट क्लियर हो रही ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, अब what if I have 2x? What will happen if I have 2x? So when you put x to be 0, y becomes 0, right? When you put x to be 1, y is 2.
तो y2 मतलब यहां पॉइंट आ जाएगा। when x is 2 y is 4, यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इट इज। आशिमा क्वाड्रेटिक में देखे थे ना क्वेश्चन, इसमें भी वैसे क्वेश्चन आएंगे। कोई ग्राफ देके पूछ लिया कि किसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना, किसका ग्राफ होने की पॉसिबिलिटी है। आई शेयर दी क्वेश्चंस विद यू। अभी समझ आ रहा है सबको? ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऐसे, अगर बिल्कुल 45 पे था, थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया अब, ठीक है। जितना यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा 2 की जगह 3 आ जाएगा और वाई की तरफ चला जाएगा, ये 4 आएगा और आगे चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही अगर ये 1/2x हो जाएगा तो ये थोड़ा x एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? y is equal to half x. I hope it is clear to all of you. y is equal to half x समझ आया सबको? y is equal to half x समझ आ रहा है सबको? x की वैल्यू ऑब्वियसली 0 लोगे तो y 0 आएगा, ये क्लियर है। x 1 लोगे तो y 1/2 आएगा, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 हियर, ठीक है। तो ग्राफ जो पहले ऐसे था वो थोड़ा x की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है। ये तुम्हें मूवमेंट क्लियर होनी चाहिए, राइट? अच्छा, अभी नाउ व्हाट इफ आई हैव y is equal to negative of x, what is my graph going to be? क्या हो जाएगा? पहला वाला ग्राफ मेरा ऐसा था, अब ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट? दूसरी तरफ बिल्कुल मूव कर गया। y is equal to negative x. Is it clear to all of you? ये ग्राफ समझ आ रहा है? नेगेटिव x, इसकी भी ऊपर नीचे मूवमेंट, अगर +1 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, -1 होगा तो ये नीचे चला जाएगा एक पॉइंट। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ठीक है, तो मूवमेंट्स का ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट्स व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू? मैंने तुम्हें स्लोप्स के बारे में बताया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्लोप्स, कि अगर एक इक्वेशन की स्लोप m1 है तो उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बनेगी जिसकी स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू -1। ये सबको क्लियर है ना? याद है सबको ये? ठीक है। या फिर मैंने ये बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं, ये सबको याद है? मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ये यूज करने वाला हूँ अभी। जितने कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आई एम गोना यूज ऑल ऑफ देम, ओके। देन वी हैव अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स, वी हैव सेक्शन फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई लाइन है तुम्हारे पास, लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2, ठीक है। उसका मिड पॉइंट निकालना है। उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एवरेज, ओके। राहत, सो व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? यस, x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. Understood? Is it clear to all of you? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ओके, नो प्रॉब्लम राहत। अच्छा, अगर यही एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास पॉइंट्स के x1 y1 x2 y2, और उस पे एक पॉइंट चाहिए मुझे जो इस लाइन को m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो m/n, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? किसी को याद है फॉर्मूला? किसी को पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो भी बताओ, देन आई विल टेल यू द फॉर्मूला। ओके, प्रांजल पता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Yes, yes, you can unmute yourself, Rahat. You can unmute yourself. सर m1 x2 plus m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 plus तो अगर m2। m1 m2 होगा तो मैंने m और n लिया है तो m और n यूज करेंगे। अच्छा, ओके m सर। m इंटू सर m1 m into x2 plus n into x1 divided by m plus n वेरी गुड, सेम फॉर y, राइट? एंड यस सर, नीचे पर रेशियो सेम रहती है, मतलब स्लोप दोनों को ऐड करना है, m2 m और 2 को रेशियो को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द फॉर्मूला गाइस, दिस इज द फॉर्मूला। यस, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन प्रांजल। इंटरनल डिवीजन का मतलब, अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, बात क्या कर रहा हूँ बेसिकली, तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और उस पर तुमने कोई इक्वेशन बनाई, ऐसी कोई इक्वेशन बनी, उसके कोई दो पॉइंट ले लिया तुमने, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बन गई तुम्हारी एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को तुमने 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है? इस लाइन सेगमेंट को तुमने 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है। मैं तुम्हें दोबारा बना देता हूँ इसको। ये तुम्हारी लाइन है, ये ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, सॉरी, ये -1, 1 नहीं, 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज 4, 5, और इस पे एक ये पॉइंट ऐसा आ रहा है जो इसको 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड पिक अप 2 फ्रॉम हियर इनटू, यहाँ ये x2 y2 है, मतलब इससे दूसरी साइड जाना है। 2 इंटू x2 कितना है 4, प्लस 3 इंटू x1 कितना है 1, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, कॉमा ऐसे ही 2 इंटू ये y2 आ जाएगा, y2 मतलब 5, प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये तुम्हारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है? इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 8 प्लस 3 11, 11/5, और ये कितना हो जाएगा 10 -3 7, 7/5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 11/5, 7/5। ये पॉइंट इन इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सबको ये समझ आ रहा है? ओके, राइट, बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये, बिल्कुल। अगला, इफ यू हैव अ लाइन with coordinates x1, y1, and here the coordinates are x2, y2, and you have an external point, एक एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारे पास, ये एक्सटर्नल पॉइंट है जो इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब कि ये अगर m है तो ये n है। तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला इन दैट केस? कैन समबडी टेल मी द फॉर्मूला? यस, नेगेटिव साइन आ जाएगा, बिल्कुल। यू हैव m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट के। दूसरा m/2 माइनस n/1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ये राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर हो गया सबको ये?
सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है? आशिमा, जो क्वेश्चन तुम मेरे से पूछ रहे थे वो क्वेश्चन इसी पे आएंगे, ठीक है? द क्वेश्चंस दैट यू सेंट, they will use this concept. Okay, I'll give you some questions which we'll use right now. Okay, let's look at this. Let me give you a question. So you have a line segment with endpoints at 3,7 and 9,12 maybe. Okay, what would be the equation? What would be the equation of a line that passes through the midpoint? या फिर what would be the equation of the line that bisect का मतलब समझते हो ना सब लोग? bisect का मतलब समझते हो ना सब लोग? bisects the line segment, yes, at 90 degree. Yes, bisect मतलब दो equal parts में divide करना. So there's a line segment with endpoints 3,7 and 9,12. What would be the equation of a line that bisects the line segment at 90 degree? Okay, try solving this question. Meanwhile, I'll bring a book where the questions are given.
I've just got one answer till now. And unfortunately, I couldn't find that book. That probably is in my office. But anyhow, I'll do some questions from there. I remember them. Okay. So, how do you solve this? देखो, एक इक्वेशन है जिसके पॉइंट्स है 3, एक लाइन है जिसके पॉइंट है 3,7 एंड 9,12. ठीक है, जहां भी होगी ये मेरे को नहीं पता. इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जा रही है, राइट? इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है. सेंटर से जाने का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहली बात तो ये निकालो. इट इज गोइंग टू बी 6 and 19/2, isn't it? ये होंगे कि नहीं? या 6 9.5, दैट्स करेक्ट. यस. अब ये मेरे पास इसमें से एक लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर. इसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है. कैन वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप कैसे निकल सकती है? जब इस लाइन की स्लोप आ जाएगी तो इसकी भी स्लोप आ जाएगी. इस लाइन की स्लोप क्या होगी? y2 minus y1 by x2 minus x1. 12 minus 7 divided by 9 minus 3. This is 5/6. ठीक है. नो भानुप्रिया, ये इक्वेशन नहीं थी, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ऑलरेडी. सो y2 minus y1. ठीक है, y2 minus y1. 12 minus 7 किया हमने by x2 minus x1. Okay, do you understand this? भानुप्रिया एंड सान्या, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो अब नई इक्वेशन के लिए तुम्हारे पास स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गए. x1 आ गया तुम्हारे पास 6 या x जो भी लिखना है इसको लिख लो, और y1 आ गया तुम्हारे पास 19/2. नाउ do all of you remember a formula in the that I told in the last class? 2-point slope form. Sorry, point slope form. Do you remember the point slope form that I told you in the last class? It was y minus y1 is equal to m into x minus x1. Do you remember this? अनुराग, अगर तुमने लेक्चर अटेंड किया है तुम्हें याद होगा, ये मैंने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में. y minus y1 is equal to m into x minus x1. Do you remember this? राहत, ये याद है? So just put the values. y minus, what is the value of y1 here? 19/2 is equal to m की वैल्यू कितनी है? 5/6. x minus x1 की वैल्यू 6. Just solve this. See what do you get? y minus 19/2 is equal to 5x/6 minus 1. ठीक है ना? इसको एक साइड ले आओ y को, तुम एक इक्वेशन बना सकते हो चुप आराम से. y minus 5x/6 is equal to -1 plus 19/2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 17/2. इसको सॉल्व करो. 6y minus 5x/6 is equal to 17/2. ठीक है, what did I do wrong? Did I do something wrong? Oh yes, sorry, ये तो इसका स्लोप है. सॉरी, माय मिस्टेक. यस, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये वाली लाइन का स्लोप 5/6 है. दूसरे वाले को तो लिखा ही नहीं हमने. सॉरी, ये मैंने उसी का स्लोप गलती से लिख दिया. दे आर नॉट पैरेलल लाइन. सॉरी, माय मिस्टेक. यस, यहाँ मैं स्लोप लिखना भूल गया, गलती से गलत लिखा स्लोप यहाँ पे. तो 5/6 इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज गिवन. इसकी स्लोप होगी -6/5. दिस स्लोप इज गोना बी -6/5. ठीक है, आई होप याद है सबको. ठीक है, आई ओनली मेड अ मिस्टेक. इट्स -6/5 इंटू x minus 6. ये क्लियर है सबको? आशिमा, वो अभी बताया नहीं थोड़ी देर पहले, m1 इंटू m2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, या फिर m1 इज इक्वल टू -1/m2. अगर m1 तुम्हारा 5/6 है, इट बी -1/m2. m2 कितना हो जाएगा? -6/5. बताया था ना, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप. इसकी स्लोप निकाल रहे हैं हम, इस लाइन की स्लोप. ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसकी स्लोप -6/5 होगी. ओके, इसको सॉल्व कर लो बस. y minus 19/2. Let's solve this. What do we get here? Let me just put it here. So y minus 19/2 is equal to, इसको अंदर ले जाते हैं, -6x divided by 5 plus 36 divided by 5. Take x's on the same side. y plus 6x by 5 is equal to 36/5 plus 19/2.
इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर. 5y plus 6x by 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा. दिस विल बी 72 प्लस 19 5 जा 95. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. अब कितना बनाइए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई. चलो एनी हाउ, 5y plus 6x इज इक्वल टू, ये 72 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 77 167. 167 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ नीचे जो 5 था वो ऊपर चला गया, इधर कैंसिल आउट करो 2. दिस इज योर आंसर. या 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 167 बाय 2. 167 बाय 2 कितना हो जाएगा, 83.5. ओके, दिस शुड बी द आंसर. ओके, प्रांजल तुमने कहा आंसर अच्छा ऊपर दिया था. ठीक है, दैट्स करेक्ट. हाँ, तुम डबल करना चाहो डबल कर लो इसको. 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 167, ये भी कर सकते हैं. दैट आल्सो गिव्स यू द करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. नहीं आशिमा, ये आंसर है. लेट मी हाईलाइट दिस, राहत. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आशिमा कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. Shall I give you more questions on this? ये अगर नोट डाउन कर लिया है तो नोट डाउन कर लिया है? Has everyone noted it down? Let me open another question. Just a second. Anurag, have you understood everything? जितने भी हमने questions किया अभी, जितना भी हमने किया ये concept. I hope you've understood this. Okay, Ashima has sent me a WhatsApp. आशिमा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी तुमने. क्या चेक करो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक. 6 into 6 36 होता है, तुमने 30 लिखा है. चेक योर मिस्टेक. ओके अनुराग, हैव यू सीन द प्रीवियस लेक्चर्स? लीनियर वाला देखा है तुमने लेक्चर? Okay, right. Just give me a second. Let me just open up series of questions for you. Just a second, guys. Acha, ठीक है अनुराग. That's why you're facing problem. But anyhow, don't worry. I'll be sharing that lecture with you also. Just a second. I'm just. One moment, please. Just a second. ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. Okay, sharing the screen with you.
Okay, look at this question on the left hand side. Don't look at the right hand side. If m is a constant greater than 1, which of the following could be the graph in the xy plane of x plus my plus m? ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन को. If m is constant greater than 1, which of the following could be the graph in the xy plane of x plus my plus m is equal to 0? जूम करूंगा तो आशिमा तुम्हें वो नहीं दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेंगे. आई कैन जूम इट. वेट. दिस इज इट. बाकी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ. लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. जस्ट अ सेकंड प्लीज. ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे तुम्हें ऐसे ही. ये ऑप्शन है. If m is a constant greater than 1, which of the following could be the graph in the xy plane of x plus my plus m is equal to 0? Okay, Pranjal has given me the answer. Okay, we'll see. सबसे पहली चीज इसमें क्या करनी है देखो. What is the first thing that we're going to do in this? Look at this graph. पहली बात, हर एक की स्लोप जज करते हैं. स्लोप कैसे जज करेंगे? इसको पहले y is equal to mx plus c के फॉर्म में लेके आते हैं. So my is equal to, if I take it to the other side, it's minus x minus m, right? So y is equal to, ये उधर जाएगा, m नीचे जाएगा, तो minus x by m minus m by m, -1 हो गया. ये सबको समझ आ रहा है? ये इक्वेशन सबको समझ आया? Have you understood this equation this way? तो इसमें दो चीजें समझ आई तुम्हें. एक तो समझ आया कि जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है. y इंटरसेप्ट -1 है. देखो इसमें y इंटरसेप्ट क्या है? इसमें तो 1 आ रहा है, तो ये गलत आंसर हो गया. प्रांजल एंड परियत समझ आया ये गलत आंसर होगा. y इंटरसेप्ट -1 आ रहा है तुम्हारा, तो -1 इसमें आ रहा है. ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में -1 है, ऑप्शन डी में -1 है. लेकिन एक चीज और जो मेरे को देख के क्लियर हो रही है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है. स्लोप इज नेगेटिव. तो मैंने बताया अभी शुरू में जब हमने किया, जब भी स्लोप पॉजिटिव आ रही थी तो ग्राफ ऐसा बनता है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता हुआ. जब भी स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप ग्राफ नीचे जाता हुआ बनता है. तो नीचे जाता हुआ ग्राफ बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है. बी और सी में नीचे जाता हुआ ग्राफ है, डी में ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, तो डी भी निकल गया. आंसर इज 1 आउट ऑफ बी एंड सी. ये सबको समझ आई ये चीज कि नहीं? ये चीज सबको समझ आई कि नहीं? ठीक है. अब बची बात बी और सी में से कोई एक आंसर है. हाउ डू वी जज कि बी और सी में से कौन सा आंसर है? देखो इसकी स्लोप है -1 by m, और m उन्होंने बोला है m इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, मतलब -1 by कुछ 2 3 कुछ भी आ सकता है. मतलब m जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन 1 है मतलब इसकी स्लोप जो है वो फ्रैक्शनल स्लोप है. जब स्लोप फ्रैक्शन होती है तो ग्राफ टिल्ट किस तरफ होता है? एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ? व्हेन द स्लोप इज 1 by समथिंग, वो एक्स की तरफ शिफ्ट होता है या वाई की तरफ? नो सान्या, एक्स की तरफ टिल्ट होता है, राइट? अब बी और सी में से कौन सा एक्स की तरफ टिल्ट हुआ है? अगर रेगुलर ग्राफ ऐसा होता है तो ये एक्स की तरफ टिल्ट हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? बी और सी ऑप्शन में चेक करो जरा, कौन सा एक्स की तरफ टिल्ट हुआ है? बी ऑप्शन वाला ग्राफ, बी वाला दिख रहा है कि नहीं? एक्स की तरफ टिल्ट होता हुआ कौन सा ग्राफ है? एक्स की तरफ टिल्ट कैसे जज कर सकते हो तुम? ऐसे जज करो ना कि जब एक्स को, मतलब स्लोप जो तुम्हारी है 1 by कुछ आनी चाहिए, मतलब y2 minus y1 by x2 minus x1 should be 1 by something. ठीक है, मतलब अगर y में चेंज कम हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो x में चेंज ज्यादा होगा.
अब यहाँ देखो y यहाँ 0 से 1 1 का चेंज हुआ, x में 2 का चेंज हो गया, दिख रहा है कि नहीं? y में 1 का चेंज हुआ, 1 नीचे गया, x 2 इधर चला गया ओरिजिन से, समझ रहे हो? तो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर, नॉट सी ऑप्शन। सी वाली स्लोप तो बड़ी है ना। देखो एक चीज जज करो प्लीज, कि अगर तुम्हारा ग्राफ, सॉरी जस्ट इरेज दिस, प्लीज ट्राई टू जज दिस। नॉर्मल ग्राफ ऐसा है, अगर तुम्हारा ग्राफ y इज इक्वल टू कोई नंबर, लेट्स से mx आ रहा है, तो ये इस तरफ ऊपर y की तरफ शिफ्ट करेगा, और बड़ा नंबर है तो और y की तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर 1/mx आ रहा है तो ये x की तरफ, नॉर्मल ग्राफ जो ऐसा होता है वो x की तरफ टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, वो इसी में कर रहा है ना, बी में ही कर रहा है, सी में नहीं कर रहा है। ये चीज सबको समझ आ रही है कि नहीं? प्योर लॉजिक, हमने देखा क्या? इंटरसेप्ट देखा, स्लोप देखा, सिर्फ इन दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। I'll clear this all if you want. दोबारा लिख देता हूं अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो। पहली बात, x प्लस एम वाई प्लस एम इज इक्वल टू 0, इसमें इक्वेशन बन जाएगी एम वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एम, y वुड बी माइनस 1/mx माइनस m/m, या y इज इक्वल टू माइनस 1/mx माइनस 1। ये सबको समझ आई? इसमें y इंटरसेप्ट -1 है, वो भी समझ आया। इन दोनों में y इंटरसेप्ट -1 है, ये चीज सबको समझ आ गई। अब स्लोप की बात कर रहे हैं, नेगेटिव स्लोप है, इन दोनों की नेगेटिव स्लोप है, बी और सी की। डी की पॉजिटिव थी, उसको निकाल दिया। स्लोप 1/m है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नॉर्मल स्लोप ऐसे होती, सब नॉर्मल ग्राफ ऐसा होता है, तो अगर 1/, वाली स्लोप है तो वो x की तरफ टिल्ट करती है, ये 1/m स्लोप, ये 1 स्लोप। और अगर m स्लोप है तो वो ऐसे टिल्ट करती है, ऐसे जाती है, समझ रहे हो, y की तरफ जाती है। अब शायद तुम्हें कुछ जजमेंट हो, ये 1/m वाली है, ये m वाली है, इजंट इट? इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है? बी और सी को देख के क्या पता चल रहा है, कौन सी स्लोप किसकी है? वसुधा क्लियर हुआ ये कि बी आंसर है कि सी आंसर है? बी वुड बी द आंसर। अनुराग समझ आया ये? स्लोप की, अब आशिमा यू आस्क्ड मी कि ये स्लोप का मूवमेंट ऐसे ऐसे कहाँ हेल्प करेगा, ये दिख रहा है ना कहाँ हेल्प कर रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये वाला। आशिमा समझ आया ये? चलो, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। I guess this is a very good question. Okay, look at this question. The points, this question, the points A 10,4 and B -2, are 13 units apart. Which of the following equations could describe the line that contains point A and B? The points A, मैं तुम्हें ये भेज दूंगा, I'll send you this file, but till then ये question solve करो, tell me what the answer would be. दो पॉइंट है A और B, दिए हुए हैं पॉइंट, एक 10,4 है, एक पॉइंट है -2, और इनके बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट्स है। Which of the following equation could describe the line that contain points A and B? अच्छा, इसके लिए तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत होगी, मैं तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला भी बता देता हूँ। See, if two points are x1 y1 and x2 y2, what is the distance between these 2 points? Can somebody tell me? Distance between these 2 points is, no, 13 is not slope, 13 is the length of that line. Okay, Ashima, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ y2 minus y1 स्क्वायर प्लस x2 minus x1 स्क्वायर। सबको पता है ये फॉर्मूला कि नहीं? नहीं पता है, मैं बना भी सकता हूं, कैसे बना ये फॉर्मूला बता सकता हूं।
If you do not know this formula, I can explain this formula to you. Do you want to see this? Let me show you this formula. So let me explain this formula to you. Okay, तो फॉर्मूला देखो एक बार. कोई दो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, this point is x2, y2. I need to figure out the distance between these 2 points. How would I find that out? Distance कैसे निकलेगा? Let me just show you. ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा. ये लाइन कितनी होगी? ये तो x1 के बराबर, सॉरी x1 y1 है, ये y1 y2 के बराबर ही होगा कि नहीं? सॉरी y1 होगा ना, ये y सीधा चल रहा है. अगर ये y1 है तो ये पॉइंट भी तो y1 होगा कि नहीं? ये समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाली लाइन जो रेड कलर की ये वाली लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज y2 माइनस y1. ठीक है, y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर आ गया y2 माइनस y1. तो तुम्हें वो फॉर्मूला याद होगा पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, अब बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर करेंगे, वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. मतलब ये लाइन की डिस्टेंस आ गया. ये क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं. ये लेंथ निकालनी कितनी होगी, ये रेड वाली, ये वाली रेड लाइन कितनी होगी? ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट कितना होगा? अगर ये पॉइंट x2 है तो ये पॉइंट भी x2 होगा कि नहीं? समझ सकते हो ना, क्योंकि x के ऊपर ही लाइन है ये. कैन वी से दिस पॉइंट इज x2? सो कैन वी से दिस लाइन इज टोटल पूरा x2 माइनस दिस x1? लेट मी जस्ट शो यू विद द पेन. अगर ये पूरी लाइन x2 है तो ये लाइन x1 है, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये रेड कलर की लाइन आ जाएगी कि नहीं? समझ रहे हो ये बात? सो कैन आई से दैट दिस इज x2 माइनस x1? दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. ये हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर. दिस इज हाउ वी डिराइव द डिस्टेंस फॉर्मूला. बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, एक बार याद रख लो बस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है सबको? राहत, वसुधा, अनुराग, आशिमा, परियत, फॉर्मूला क्लियर है? परियत, इज इट क्लियर? ओके राइट. चलो वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे. Okay, so this was your question. The points A 10,4 and B -2, K are 13 units apart. Which of the following equation could describe the line that contain points A and B? उस लाइन का तुम्हें इक्वेशन बताना जिसमें ये दोनों पॉइंट आते हैं. Obviously you can use 2-point form. 2-point form यूज कर सकते हो. डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो. You can use anything. Think about it. आशिमा, ऐसी इक्वेशन दिख रही तुम्हें ऑप्शन में? अच्छा, लीनियर इक्वेशन.
सबसे पहला काम तो तुम ये कर सकते थे, अरे इसको मत देखो, भूल जाओ, राहत, ये वाला सोल्यूशन। वैसे ये तुम्हारा 12 कहाँ से आया? तुम 10 पे बैठे हो, 10 से -2 जाओगे तो कितना डिस्टेंस होगा? 12 नहीं होगा? 12 ही होगा ना। समझ आ रहा है राहत 12 कैसे हुआ? यहाँ 10 है, यहाँ -2 है, क्योंकि -2 बोला था ना उसने, -2 कॉमा के। बिल्कुल ठीक है आंसर प्रांजल। सबसे इजी काम तो ये हो सकता था कि 10 और 4 इसमें डाल के देख लो ना, x को 10 डालो, y को 4 डालो, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। पहली बात तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दूसरी होती है, तीसरी तो नहीं होती। तीसरी हो रही कि नहीं होती? चौथी 5 इंटू 10 50 -13 4 52, ये भी सेटिस्फाई होती है। तो सी ऑप्शन तो निकल गया ना तुम्हारा। सी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। बाकियों में चेक करना है तो देख सकते हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग। व्हाट डू वी डू? किसी का निकल रहा है सोल्यूशन तो बताओ, नहीं निकल रहा तो मैं कराता हूँ। प्रांजल ने आंसर दे दिया मुझे। नो भानुप्रिया, दैट्स नॉट द आंसर। पहली बात तो स्लोप देखो, इस लाइन की स्लोप क्या हो सकती है जो हमें लाइन बनानी है? बेसिकली द पॉइंट्स 8 10 4 एंड -2 a आर 13 यूनिट्स अपार्ट। तो देखो, if you draw the diagram, let me just take a screenshot of this and put it on the screen. Just a second. Okay, let's look at this question now. So points A 10, 4 and B -2, a। तो पहले बना लो ग्राफ तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। 10, 4 10, 4 ऐसा कुछ होगा। दिस पॉइंट एंड -2, k -2, k 10, 4 यहाँ था, -2, k मतलब इस ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर बना लेता हूं मैं, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कहीं दूसरा पॉइंट है, मेरे को नहीं पता कहाँ दूसरा पॉइंट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दूसरा पॉइंट है, राइट? तो अब इफ यू सी दिस इज 10, 4, दिस इज -2 वाली लाइन, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं पॉइंट है। लेट्स से रैंडमली अगर यहाँ पॉइंट होता तो ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है दिस शुड बी 13, राइट? दिस शुड बी 13। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि उसने दिया हुआ है 13 यूनिट्स अपार्ट। सबको समझ आ रहा है ये? एंड दूसरी चीज, इफ यू लुक एट द स्ट्रेट डिस्टेंस हियर, ये डिस्टेंस कितना है? ये 10 पॉजिटिव और -2 2, ये वाला 2, ये 10 12 डिस्टेंस हो गया। ये क्लियर है सबको? ये 12 डिस्टेंस 12 क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये लाइन कितनी होगी फिर? दिस गोना बी 5, क्योंकि तुम्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो 5 12 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट।
5 square plus 12 square is equal to 13 square. सबको याद है ये? It's a Pythagorean triplet. स्कूल में हम कुछ ट्रिपलेट करते थे. 3 4 5 is a Pythagorean triplet. 5 12 13 is a Pythagorean triplet. ऐसे ही 7 24 25 is a Pythagorean triplet. 8 15 17 is a Pythagorean triplet. 9 40 41 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet का मतलब ये Pythagoras को satisfy करते हैं, right? Do you guys understand this? Is it clear to all of you? अच्छा 5 हो गया, तो ये जो पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस ऊपर या नीचे हो सकता है. अब ये तो 4 है ना, दिस पॉइंट इज -2,4, तो दिस पॉइंट कुड बी -2,9, या फिर ये नीचे जा सकता है, दिस पॉइंट कुड बी -2,-1. समझ गए? 5 ऊपर या 5 नीचे हो सकता है. सो दीज कुड बी आर 2 पॉइंट्स. ठीक है, इज इट क्लियर? इसको समझ आ गया? अच्छा, अभी स्लोप अगर ये पॉइंट होगा मेरी, तो स्लोप कितनी होगी? y2 - y1 by x2 - x1 इज द स्लोप, राइट? ये स्लोप होती है. स्लोप कितनी हो जाएगी? 4 - 9 डिवाइडेड बाय 10 - -2. My slope will become -5 divided by 12. अब मेरे ऑप्शन बचे थे सिर्फ ए सी, पहले निकल गया था. मेरे ऑप्शन बचे थे ए बी और डी. ए बी डी में किसका स्लोप -5/12 दिख रहा है? इसका स्लोप -13/12 है, इसका स्लोप -5/12 है, इसका स्लोप -5/12 है, लेकिन ये पहले निकल चुका है. इसका स्लोप -5/-13 है. समझ रहे हो? There's only one option which has a slope of -5/12. Is it clear to all of you? समझ आ रहा है ये? थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आई नो, बट I'm explaining it by breaking it in steps. समझ आया सबको? We can try something else also if you want. इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे. I can give you another sorry. कौन से पॉइंट्स राहत बोल के बता दे, कौन से पॉइंट्स? ये -1 और 9 की बात कर रहे हैं? यस सर. हाँ देखो, ये पॉइंट समझ आया था. -2,4 क्यों है? यस सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन है. 4 यहाँ, तो यहाँ भी 4 ही होगा. ठीक है ना? लेकिन जब यहाँ डिस्टेंस 5 का है, मैंने निकाला अभी पाइथागोरस से, तो या तो 5 ऊपर पॉइंट होगा या 5 नीचे होगा. ये मिड पॉइंट से निकाला आपने? नहीं, इसी देखो, ये निकाला मैंने पाइथागोरस से. ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये ब्लैक वाला. यस सर. इसमें ये 13 डिस्टेंस है. और ये डिस्टेंस सारा जो दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है 12. 10 और 2 12 हो गया ना. तो पाइथागोरस यूज किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. उससे ये 5 आ गया. ठीक है सर. ठीक है, तो 5 ऊपर जाना है या 5 नीचे जाना है? 4 से 5 ऊपर जाओगे y में, तो ये 9 हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो -1 हो जाएगा. इससे 2 पॉइंट्स आ गए. सर ये कंफ्यूजिंग और ठीक है, अब समझ आया. समझ आ गया ये? यस सर. सर कोई और है मेथड? ये बहुत कंफ्यूजिंग है. एक और करते हैं इससे. एक और मेथड करते हैं. परियत, देखो स्लोप याद है ना इक्वेशन का? ax + by अगर इक्वेशन हो तो स्लोप होती है -a/b. तो मैंने अभी स्लोप निकाली. ये मेरा एक पॉइंट आया 10,4, एक पॉइंट मेरा -2,9 है. आई पिक्ड अप -2,9. तो आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, y2 - y1 by x2 - y1. y2 क्या है? इतना 4 है यहाँ पे, तो 4 डाल दिया मैंने. और y1 कितना है? सॉरी, y1 कितना है? 9 है, तो 4 - 9 डाल दिया. x2 - x1. what is x2 here? it is 10. and what is x1 here? -2. so 10 - -2, we get the slope as -5/12. और ऑप्शंस में से -5/12 कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है या सी ऑप्शन में दिख रहा है? सी हम पहले निकाल चुके हैं, तो बी ही बचता है सिर्फ आंसर. बी ऑप्शन वुड बी द आंसर. Did you understand now?
लेट मी गिव यू अनदर वे आउट. डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 13 डिस्टेंस जो है शुड बी इक्वल टू ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर. y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर. राइट. सो 13 यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 12 का स्क्वायर 144. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 169 इज इक्वल टू 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144. सो 4 माइनस k होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 25 आ जाएगा. सो 4 माइनस k कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट. 4 माइनस k कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 5. 4 माइनस k अगर प्लस 5 होगा तो k वुड बिकम, ये कितना बन जाएगा, -1. राइट. एंड अगर 4 माइनस k माइनस 5 होगा तो k वुड बिकम 9. ठीक है. तो यहाँ पे या तो -1 है या फिर 9 है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. सो यू पुट बोथ एंड मेक चेक आउट द स्लोप्स. इसकी स्लोप कितनी है, -13/12. इसकी स्लोप कितनी है, -5/12. इसकी -5/12. इसकी स्लोप 5/13. देख के पता चल रहा है ना, -a/b फॉर्मूला लगा के स्लोप. अब तुम्हारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं. एक पॉइंट है 10,4, दूसरा पॉइंट या तो हो सकता है 2,9 या दूसरा पॉइंट हो सकता है 2,-1. ये अभी निकाले हमने. ठीक है ना. इनसे स्लोप निकाल लो, जिसकी स्लोप इनमें से मैच कर जाएगी वो आंसर है. ठीक है ना. दिस इज अनदर वे आउट टू सॉल्व दिस. अगर ये समझ आ रहा है तो ये यूज कर लो. समझ आया ये सबको. इजी तो नहीं था, इजी वो भी था, बट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ड्राइंग द ग्राफ्स येट, इसलिए मे बी. सबको समझ आ गया. Shall I give you another question? एक क्वेश्चन और कर लें. Just last question. Last question. I know it's a difficult topic, but last question to give you a boost. It will be an easy question. Let me see the responses. Let me see how many yes or no come. Okay. 3:2 का रेशो चल रहा है अभी. 3 yes versus 2 no. 4 yes versus 2 no. 4 yes 3 no. अनुराग, ये n का क्या मतलब है, नो है कि yes है? नो. अनुराग says no. टाई हो गया ये 4:4. सान्या, व्हाट डू वी डू आफ्टर फाइंडिंग k? k निकालने के बाद दो पॉइंट आ गए मेरे पास. एक पॉइंट आया 10,4, ये तो है ही. दूसरा पॉइंट -2,9 क्योंकि k की वैल्यू 9 आई थी, या फिर 10,4 -2, -1. अब सिंस यू हैव 2 पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट द स्लोप. स्लोप निकालो. स्लोप निकलेगी पहले वाले से -5/12. उसको मैच कर लो ऑप्शन से. कहाँ मैच करती है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच करती है, बी ऑप्शन. ठीक है. चलो मैं फिर सी, इफ यू फाउंड वॉट एवर वी डिड टुडे डिफिकल्ट, मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन खुद उठाए हैं. द क्वेश्चन दैट यू विल बी डूइंग वुड बी इजियर देन दिस. ओके. बिल्कुल दो स्लोप्स आएंगी आशिमा. मेरी पहली पे मैच करके मैंने वो उठा ली, दूसरी भी चेक कर लो. यू वांट टू चेक दैट, वो भी चेक कर लो. 9 - 4 बाय -2 -10, सॉरी -2 -10. उसमें भी स्लोप क्या रहेगी, 9 - 5 नीचे -12. स्लोप फिर भी वही आएगी, -5/12. ठीक है. yes, it is a little time consuming, right? समझ आ गया ये सबको. चलो, so we'll stop here then. I'll send you some questions which you need to practice. Okay.
I'm going to send you some questions, okay? एक दूसरे का नेगेटिव हो गया ना, बस -5/12 नहीं आएगी ये. दिस स्लोप शुड बी एक्चुअली ये 10,4 और -2,9. देखो है तो पॉइंट सिमिलर ना आशिमा. सो 9 - 4 लिया, -2 सॉरी 9 - 4 लिया और -2, -12 लिया. हाँ, स्लोप वही आएगी क्योंकि एक्चुअली लाइन सिमिलर है ना. आफ्टर दिस क्लास प्रांजल, यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, चलो. सो विल स्टॉप हियर. अभी के लिए मैं रुक रहा हूं. Yes, Anurag, I'm sharing both the videos with you. ठीक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड विद यू. इसके नोट्स भी शेयर कर देता हूँ तुम्हारी क्लास में. ठीक है, चलो, सी यू देन. बाय बाय गाइस, टेक केयर.